تو میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کو جو کہ تنہائی میں رکھا گیا ہے اور ان سے ان کی فیملی اور دوست و اقارب کی میٹنگ نہیں ہو پا رہی، اور تقریباً 90 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور اس میں صرف جو ہے تقریباً آدھا گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے، اور باقی جو ہے ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، کسی کو چھوڑا نہیں جا رہا۔ تو اس عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اہلیہ ہے، جو ایک باپردہ، باحیا، باکردار اور غیر سیاسی خاتون ہیں، بشریٰ بی بی صاحبہ ان کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور ان کی جو فیملی ہے ان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ عمران خان صاحب کی بہنوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ سیاسی باتیں کرتی ہیں جب ملاقات ہو جاتی ہیں، لیکن دوسری طرف ہم نے بشریٰ بی بی صاحبہ کی فیملی کی آج تک جو ہے کوئی سیاسی بیان نہیں سنا۔ تو ایک طرف تو یہ بیانیہ گڑھا جاتا ہے کہ سیاسی بیان آتے ہیں، دوسری طرف جو ہے بالکل ایک بیان بھی نہیں آتا، اور اس کے باوجود بھی نہ ان کو ملنے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی جو ہے ان کو سردی کا سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور سخت ترین ڈکٹیٹرشپ میں، امریت میں بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا جس طرح کہ یہ حکومت، جو جعلی حکومت ہم سمجھتے ہیں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکے سے آئی ہے، وہ تمام امریت کے ریکارڈز اس وقت توڑ رہی ہیں۔ تو اس اقدام کی ہم شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں، صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے عمران خان صاحب کی فیملی کی اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی فیملی کی ملاقات ان سے کروائی جائے۔ جو سردی کا سامان ہے وہ جلد از جلد ان کو مہیا کیا جائے، اور ان کے حوالے سے جو تشویشناک خبریں آ رہی ہیں تو وہ قوم کے سامنے لائے جائیں اور قوم کو آگاہ کیا جائے کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ دوسرا، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ پھر ملٹری آپریشنز کو مسلط کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے آج ریکارڈ پر یہ آنا چاہیے، اور یہ تمام دوستوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے، صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا نے کسی بھی ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دی۔ یہ ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ زور زبردستی کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ موقف ہے، صرف ہمارا نہیں، صرف پاکستان تحریک انصاف کا نہیں، جتنی بھی ہمارے سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا کی، ان کا بھی، ہر مکتبہ فکر کے لوگ جن کو ہم نے صوبائی اسمبلی کے چھت کے تلے جمع کیا، تمام کا یہ ایک ہی موقف ہے کہ ملٹری آپریشنز کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ 22 بڑے ملٹری آپریشنز اور 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہم کر چکے ہیں، اور دہشت گردی کو ہم ختم نہیں کر پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام قبائلی اور پختون مشران کو، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے مشران کو، ان کو بٹایا جائے، وفاق اور صوبہ، تمام جو ہمارے سیکیورٹی فورسز جتنے بھی ہیں وہ بیٹھے، ایک جامع لائحہ عمل بنائیں، تو اسی طریقے سے ہی مستقل اور پائیدار امن صوبے میں بھی آ سکتا ہے اور پاکستان میں بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلے ہم مسلط کریں گے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ 9 اپریل 2022 میں پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھا، لیکن رجیم چینج آپریشن کے بعد جب بند کمروں میں فیصلہ کیا گیا اور ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا، تو آج 3 سال بعد وہی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 2.6 سے 3% تک جا رہا ہے۔ جو بیرونی قرضے تھے وہ تقریباً 43,000 ارب روپے سے، بیرونی اور اندرونی قرضے 43,000 ارب روپے سے 80,000 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ نوجوان ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہیں، ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اگر آج اعلان کیا جائے کہ کون کون پاکستان کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو آدھے سے زیادہ نوجوان پاکستان چھوڑ کر بیرونی ملک چلے جائیں گے، کیونکہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، مہنگائی آ گئی ہے۔ تو یہ تمام جو
नुकसानात हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान पर अभी इम्तिहान का वक्त है, ये बंद कमरों के फैसलों का नतीजा है। इसके साथ साथ सिर्फ ऑपरेशन से लोग बेघर नहीं होते, इस पर सूबे के वसाइल भी लगते हैं। हमें एक तो अपना हक नहीं दिया जाता, जो 4,758 अरब रुपए से ज्यादा अभी तक बन चुके हैं। एक तरफ वो नहीं दिया जाता, दूसरी तरफ हम पर जो है मिलिट्री ऑपरेशंस मुसल्लत किए जाते हैं। तो इसकी मद में सिर्फ इनखिलाफ पर और उनको जो है रिलीफ देने पर तकरीबन हमारे 20 अरब रुपए अभी तक लग चुके हैं। अगर ये ऑपरेशन जारी रहा तो ये तकरीबन 100 अरब रुपए से ज्यादा इस सूबे को नुकसान देगा। इसमें वफाक हमारे साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। जो हमारे बका खेल के टीडीपीज हैं, जो टेम्परेरी डिस्प्लेस पीपल है, उसका वादा हमारे साथ मरकज ने किया था कि इनको हम पैसे देंगे, लेकिन 7.5 अरब रुपए सुबह अपनी जेब से दे रहा है। तो ये ऑपरेशन की मद में हमारे साथ सिर्फ नाइंसाफी नहीं हो रही, हमारे साथ जो है डेवलपमेंट स्कीम्स में भी नाइंसाफी हो रही है। इधर नॉर्दर्न बाईपास है जो 2010 में शुरू किया गया था, जिसकी इनिशियल कॉस्ट तकरीबन 3 अरब रुपए थी, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और आज के दिन वो 31 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, लेकिन वफाक जो है उसको बनाने में सीरियस नहीं है। तो हमने मजबूरन सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने उसको तकरीबन 5 अरब रुपए देकर एक्सपेडाइट किया है ताकि वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो ये तमाम चीजें जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक और सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। इसके साथ साथ हमने वादा किया था पहली कैबिनेट में कि एक्शन इन नीड ऑफ सिविल पावर हम वापस लेंगे, जिसका पहली कैबिनेट में मैं बाकायदा ऐलान कर चुका हूं और सूबाई काबीना उसको अप्रूव कर चुकी है। उसमें मसला ये आ रहा है कि हमारे जो सेंटर्स हैं जहां पर दहशतगर्दों को रखा गया है, हमने लेटर किया क्योंकि जो पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन है, जो जस्टिस वकार सेठ ने डिसीजन लिया है, तो उसमें ये कहा गया है कि जब एक्शन इन नीड ऑफ सिविल पावर हम विड्रा करेंगे तो जो जेल हैं जहां पर ये कैदी हैं वो सब जेल डिक्लेयर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे साथ जो वहां पर कैदी हैं या दहशतगर्द हैं जो वहां पर रखे गए हैं उनकी डिटेल्स हों, क्योंकि हमें ये खदशा है कि जैसे ही हम एक्शन इन नीड ऑफ सिविल पावर विड्रा करेंगे तो ऐसा ना हो कि कोई दहशतगर्द भाग जाए या वो दहशतगर्द जो हमारी लिस्ट में ना हो वो जो है सुबह को हमारे गले डाल दिया जाए। एक तरफ तो वैसे भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बाकायदा इल्जाम लगाया जाता है कि हम दहशतगर्दों के साथी हैं, जो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। इनको बनाने वाले, इनको लाने वाले, इनको आबाद करने वाले सबके हम खिलाफ हैं, क्योंकि हम अमन चाहते हैं, हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं, लेकिन तरीके से एक मुश्तरका लायामल से। तो वो लिस्ट हमने बाकायदा लेटर किया है, लेकिन वो लिस्ट हमें नहीं दी गई। उसके लिए हम तकरीबन 3-4 दिन पहले बाकायदा रिमाइंडर भी दे चुके हैं कि हमें वो लिस्ट दें, हमें वो नाम दें जो जो इसमें कैद है, ताकि हम आगे प्रोसेस कर सकें। तो एक्शन इन नीड ऑफ सिविल पावर का जो प्रोसेस है वो इसी वजह से डिले है। इसके साथ साथ कोलेटरल डैमेज की कानून साजी का हमने वादा किया था। कोलेटरल डैमेज जो है वो ड्रोन से होता है। हम पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि आप जो है आर्मी के खिलाफ बात करते हैं और कोलेटरल डैमेज जो है वो दहशतगर्दों के मारने में फिर जो है कोई एक बंदा शहीद हो जाता है सिविलियन, तो क्या बात है। इसमें इस तरह है कि दहशतगर्द जो आते हैं वो एक राज रिपोर्ट सबके लिए आते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये सिविलियन है, ये नहीं देखते कि ये मस्जिद है, ये घर है, कोई बाजार है, फौजी है, पुलिस ऑफिसर है, सीटीटी वाला है या कोई भी एहलकार है, वो ये नहीं देखते। वो आते हैं दहशत फैलाने के लिए, लोगों को मारने के लिए, चाहे वो कोई भी हो। हम अगर अपनी
आर्मी से गिला करते हैं तो आर्मी हमारी मुहाफिज है। अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस से ये गिला करते हैं कि कोलेटरल डैमेज में मासूम लोगों की शहादतें हो रही हैं, तो हम अपनों से गिला करते हैं, क्योंकि हमारे जहन में ये है कि ये हमारे मुहाफिज हैं और ये हमारी हिफाजत करेंगे। एक तरफ अगर दहशतगर्द हमें मारे, दूसरी तरफ जो है कोलेटरल डैमेज ड्रोन या जेट बमबारी से हमारे सिविलियंस जो है वो शहीद हों, तो तकलीफ तो आवाम को ही होती है, डैमेजेस आवाम के ही होते हैं। तो गिला अपनों से किया जाता है, उनसे नहीं किया जाता जो हमें खत्म करने के लिए आते हैं। तो कोलेटरल डैमेज से के कानून साजी से ये होगा कि कोई अंधाधुंध जो है सिविलियंस पर ना फायरिंग करेगा, ना ड्रोन्स करेगा, ना जो है जेट तैयारों से बमबारी करेगा। तो इसके लिए कानून साजी की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे एजी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे बाकी वकला ने इस पर बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन जो मसला है वो फेडरल गवर्नमेंट ने जो इख्तियारात हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को दिए हुए हैं आइन के अंदर, तो वहां पर तब्दीली जो है वो वफाक कर सकती है, सुबह नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल हम लगे हुए हैं। अगर किसी वकील को हमारे जो बाकी वकील हैं, बाकी पार्टियों के हैं, उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप इसमें जो है हमारी मदद कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि हम कोलेटरल डैमेज का जो मुसलसल सामना खैबर पख्तूनख्वा की आवाम कर रही है, तो उसमें जो है हमारी मदद आप कर सकते हैं। और ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम नहीं, 26 नवंबर को हमने देखा कि वहां पर गोलियां चली, मासूम लोग शहीद हुए, वो भी इन्होंने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किया गया था। तो इन तमाम चीजों के लिए पूरे पाकिस्तान में एक कानून होना चाहिए कि वो जिस भी पार्टी से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी जुबान से हो, अगर उनके साथ जुल्म होता है और अपने ही लोग उनको जो है शहीद करते हैं, तो एक कानून आना चाहिए ताकि उनके हाथ बंधे रहें, ताकि वो इंसानों की तरह बिहेव करे, जानवरों की तरह बिहेव नहीं करे। ले जी भैया, ये होता है डट जाना। इसको कहते हैं कि अपने मुल्क की इज्जत और एहतराम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करना। बांग्लादेश ने आईसीसी को उसी के लहजे में सख्त जवाब दे दिया कि तुम्हारा वर्ल्ड कप जाए बाढ़ में, हमारे खिलाड़ियों की सिक्योरिटी अजीज है, अगर तुम बांग्लादेश के बगैर ही खेलना चाहते हो तो खेलो, हम अपनी टीम किसी सूरत भारत नहीं भेजेंगे क्योंकि वहां पे हमारे सिक्योरिटी मसाइल है। तो मामला यहाँ नहीं रुकना, बल्कि इसके बाद पाकिस्तान भी फॉलो करेगा बांग्लादेश को, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐलान कर रखा है, मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप की तैयारियां रोक रखी हैं और आईसीसी को पाकिस्तान ने लेटर भी भेजा था कि भैया बांग्लादेश की जायज डिमांड्स के ऊपर गौर करो, नहीं तो फिर पाकिस्तान से भी हाथ धो बैठोगे। तो पाकिस्तान अगर नहीं जाता और बांग्लादेश भी नहीं जाता तो आईसीसी के लिए बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। वादा करता चलूं नाज़रीन किराम, आईसीसी की जानब से बांग्लादेश की डिमांड्स को फार्मली मुस्तरद कर दिया गया है और कहा गया है कि बांग्लादेश जो दूसरे वेन्यू में अपने मैचेस मुंतकिल करवाना चाहता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमने जायज़ा लिया है, भारत में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। वादा करते चलो नाज़रीन किराम, वाले से आईसीसी की मीटिंग में बाकायदा वोटिंग हुई और 14 ममालिक ने उसमें शिरकत की और उसमें पाकिस्तान ने सिर्फ बांग्लादेश को वोट दिया। इसके अलावा जितने भी वोट थे ये बीसीसीआई ने खरीद लिए और सब ने बांग्लादेश के अगेंस्ट वोट दिया। बहरहाल नाज़रीन किराम, बांग्लादेश की जानब से तो बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि वो अपनी टीम भारत नहीं भेजेगा, अगर आपने हमारे बगैर ही खेलना है तो आप खेलें। वादा करते चलूँ कि आईसीसी की जानब से बांग्लादेश को 1 दिन की मोहलत दी गई है और कहा गया है कि अगर आपने हिंदुस्तान आकर नहीं खेलना तो हम मुतबादल टीम लेकर आएंगे। तो बांग्लादेश ने उसी की भाषा में जवाब दिया आईसीसी को और उसका फैसला उसके मुंह के ऊपर दे मारा और कहा कि हम नहीं भेजेंगे अपनी टीम को बाहर, तुम हमारे बगैर खेलते हो तो खेलो।